ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Good evening, everyone. I hope you are enjoying all these sessions with us. सबको शुभ संध्या। हम ये आशा करते हैं कि आप सब ये सत्रों को पसंद कर रहे हैं। दिन वाली हिंदी बोल दिया। So, good. So, let's start today's session as usual with the story. तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं कहानी के साथ, फिर से नई कहानी के साथ। Many of you must have read that story in the school also. So, let's explore it in a different way today. हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये कहानी पहले देखी हो आपके स्कूल में। आज उसको एक अलग ढंग से हम जानेंगे। So there was six blind people who was staying in a town, and they all wanted to see the elephant. They have heard of the elephant, they have smelt elephant some time back or with somebody, but they never have felt what an elephant is like. तो एक बार एक शहर में एक हाथी आया और वहां पे 6 अंधे लोग रहते थे। उन्होंने हाथी के बारे में सुना था बहुत, पर कभी पास जाके नहीं जाना था। So they went close to the elephant and they started observing the elephant. Because they were blind, they were touching the elephant and then recognizing how an elephant could be. तो क्योंकि वे अंधे थे तो उनको पता नहीं था हाथी कैसा होता है। तो वो सभी हाथी को जाके छू के जान रहे थे कि ये हाथी कैसा है। First person saw the stomach of the elephant, thought an elephant is like a brick. The other person touched the tusk, the teeth of the elephant, and he said he is like a arrow or a spear. तो पहला जो आदमी था
उसने हाथी के पेट पे जाके उसका हाथ लगा तो वो बोला, अरे ये तो दीवार के जैसे लग रहा है। और फिर दीवार या ईंट। फिर दूसरा जो था उसका हाथ पहुंचा हाथी के दांत पे, तो उसने कहा, अरे ये तो भाले के जैसा हाथी है, हाथी तो भाला है। And the next one was touching the trunk of the elephant, and he said, "No, no, elephant is like a snake." तो जो तीसरा था उसका हाथ लगा हाथी के सूंड पे, तो वो बोला, अरे नहीं नहीं, हाथी तो सांप के जैसा है। And the next one was holding the leg of the elephant, and he said, "No, no, you are all wrong. Elephant is like a tree." तो जो अगला था वो पहुंचा हाथी के पैर के पास, उसको पकड़ के खड़ा था, फिर बोला, नहीं नहीं, तुम सब लोग गलत बोल रहे हो, हाथी तो पेड़ के जैसा है। And the next one, who was close to the ear of the elephant, he said, "No, no, you are all speaking rubbish. Elephant is like a fan." फिर अगला बोला कि नहीं नहीं, हाथी तो पंखे के जैसा है, क्योंकि वो उसके कान को छू रहा था, तुम सब लोग गलत बोल रहे हो। And the last one was holding the tail of the elephant. He said, "No, no, you don't know anything. You are all blind. You are also blind from the mind. Elephant is like a rope." तो जो आखिरी वाला था वो बोला, तुम तो आंखों के तो अंधे हो ही, मन के भी अंधे हो, तुम सब लोग गलत बोल रहे हो। वो उसकी पूंछ को पकड़ के खड़ा था, बोला, हाथी तो रस्सी के जैसा है। And now they all started fighting. Okay. And as they were fighting, a girl came close to them and said, "You are all wrong. You don't know what completely elephant looks like." तो अब ये ना आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो उनको देख के एक छोटी सी बच्ची आई, बोली, तुम सभी लोग गलत बात कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है कि हाथी देखता कैसा है। So, like that, many people come to you, they tell you about God. God is like this, God is like that. All of them have a very little experience of God. And very small part of his reality they have understood. So only a wise one can tell you the truth. तो देखो, कई लोग होते हैं बोलते भगवान तो ऐसे हैं, नहीं नहीं, फिर कोई और बोलते भगवान ऐसे है। उनको पूरा पता ही नहीं है कि भगवान कैसे होते हैं। केवल बुद्धिमान और ज्ञानी ही आपको बता सकते हैं कि भगवान कैसे हैं। So we have such a knowledgeable one, Lord himself, Krishna, telling us his true nature in this chapter of Vibhuti Yoga. तो हमारे पास स्वयं खुद भगवान श्री कृष्ण है, जो बताने वाले हैं कि भगवान क्या है इस 10वें अध्याय विभूति योग में। श्री भगवानुवाच मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। The blessed Lord said, with their minds wholly in me, with their life absorbed in me, enlightening each other and ever speaking of me, the wise are satisfied and delighted. भगवान बोले, मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करके अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए
मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। To those whose mind are always united with me in loving devotion, I give them divine knowledge by which they can attain me. जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकाग्र हो जाता है, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे पा सकते हैं। अर्जुन उवाच सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानव-दानवाः। Then Arjun says, "Oh Krishna, I totally accept everything you have told me as a truth. Oh Lord, neither gods nor the demons can understand your true personality. I am so blessed to listen to that from you." अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो यह सब मैं आपके मुख से सुन पा रहा हूँ। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽपि भगवन्मया। अर्जुन पूछ रहे हैं, Arjun asks, "Please describe to me your divine opulences by which you pervade all the worlds and reside in them. O Supreme Master of Yoga, how may I know you and think of you? And while meditating, in what forms can I think of you? O Supreme Divine Personality." अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यान अवस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। श्री भगवानुवाच अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। The blessed Lord said, "I am the Self, O Gudakesh, seated in the hearts of all beings. I am the beginning, the middle, and also the end of all beings." हे गुणाकेश, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। वेदानां
सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना यश अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः. The blessed Lord said, I am the Sam Veda amongst the Vedas, and Indra amongst the celestial gods. Amongst the senses, I am the mind. Amongst the living beings, I am consciousness. मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच मैं मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। Amongst these, I am the people tree. People tree is Ashwatthah. So the real name of people tree is Ashwatthah. Of the celestial sages, I am Narada. Amongst the Gandharvas, I am Chitrath. And amongst the Siddhas, I am the sage Kapil. वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्. Amongst purifiers, I am the wind. And amongst wielders of weapons, I am Lord Ram. Of water creatures, I am the crocodile. And of flowing rivers, I am the Ganga. पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मैं मगर हूँ और बहती नदियों में मैं ही गंगा हूँ। O Arjun, know me to be the beginning, middle, and end of all creation. Amongst sciences, I am the science of spirituality, and in debates, I am the logical conclusion. हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और सभी विवादों का मैं सही और अंतिम तर्क हूँ। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न दतस्ति विना यत् मया भूतं चराचरम्. Amongst the hymns in the Sam Veda, know me to be the Brihadsam. Brihadsam. Amongst poetic meters,
I am the Gayatri. Of the 12 months of the Hindu calendar, I am Margashirs. And of seasons, I am the spring, which brings forth flowers. सामवेद के गीतों में मुझे धृत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। I am the generating seed of all living beings. O Arjun, no creature, moving or non-moving, can exist without me. मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। So now we all are talking about too many qualities of Krishna. Yes? So you'll be wondering, why are we talking about, right? Do you have that question? Why are we talking about so many qualities? तो हम अभी कृष्ण की बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि कृष्ण ये है, कृष्ण वो है। क्या आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि हम क्यों बात कर रहे हैं इतना कृष्ण के बारे में, है ना? उठ रहे हैं। So I would like to tell you, what happens when you sit for meditation, your mind goes to the best of the things. If you see somebody wearing a very nice clothes, eating very nice pizza, or something which is very beautiful, your mind gets stuck to those things and you are not able to meditate. तो देखो कई बार ऐसा होता है ना, जब हम कुछ बहुत अच्छा सुंदर देख लेते हैं, टेस्टी देख लेते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, और कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, तो हमारा मन वहां अटक जाता है और हम ध्यान नहीं कर पाते। Yes, so here Shri Krishna is telling, whatever beauty, whatever power, whatever glory, whatever the best you see on this planet is all because of me. Like you see in every power and every intelligence, all the qualities, all the skills, they are all me. So when you do that, what happens? Your mind becomes inward. It goes towards Krishna. तो यहाँ पे कृष्णा का कहना ये है कि जो भी तुम्हें बेस्ट दिखता है ना बाहर, सुंदरता में अति सुंदर, बुद्धिमान में सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी, वो सब मुझसे ही है। आवाज में सुंदर आवाज, वो मैं ही हूं। और जब हम ये जान लेते हैं तो हम आसानी से अंतर्मुख होकर ध्यान कर पाते हैं। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। So Krishna says, whatever you see as beautiful, glorious or powerful, know it to spring from a spark of my splendor. कृष्ण कहते हैं, तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ, मेरे ही तेज के कण से उत्पन्न हुआ मानो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। Let's all chant together. सब लोग एक साथ उच्चारण करते हैं, जप करते हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।